السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کونین، خالق جہاں، خالق دنیا، آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب یعنی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے جوڑا پیدا کیا، کہ ہم نے جوڑا انسان کو بنایا، یعنی کہ مرد ہے تو اس کے لیے عورت ہے، یعنی کہ ہم نے جوڑا پیدا کیا، یعنی شادی شدہ سب کا جوڑا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ سب سے مخلوقات میں افضل بہتر گریٹ اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم سب ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جو سب سے افضل امتی ہیں۔ ہم آپ کو اس صباح رضا محسی جو چینل ہے اس کے ذریعے سے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں اچھی باتیں، مسئلہ مسائل کی باتیں، تاکہ آپ لوگ سیکھیں، جانیں اور 10-11 لوگوں کو سکھائیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے، آج کا جو میری گفتگو ہوگی، یہ گفتگو ہوگی ساس بہو کا جھگڑا۔ کس کا؟ ساس بہو کا جھگڑا، ہر گھر میں بڑی تگڑا، سب کا بھرا ہوا ہے اس جھگڑا سے ڈگڑا۔ تجربہ کہتا ہے، اور میں اس لیے کہ میں لوگوں کو پڑھتا ہوں، لوگوں کے بیچوں میں رہتا ہوں۔ اکثر گھر میں اللہ تعالیٰ نے حالانکہ انسان کی جوڑی بنا رکھا ہے، مرد کی جوڑی، عورت کی جوڑی، ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں۔ ٹرین بھی چلتی ہے تو 2 پہیے پہ چلتی ہے، تو انسانی زندگی گزارنے کے لیے بھی 2 ساتھی کا ہونا ضروری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایک کو شوہر اور ایک کو بیوی۔ تو پھر یہ جب شادی کرنا سنت رسول ہے، سنت رسول کے مطابق ہمارے گاؤں سماج میں شادیاں آج کل کے حساب سے بہت کم ہو رہی ہیں۔ سنت رسول کے مطابق ہی شادی ہونی چاہیے، ویسی شادی ہونی چاہیے جیسی شادی حضرت علی کی ہوئی، حضرت فاطمہ کی ہوئی، ویسی شادی ہونی چاہیے، اور ویسی ہی شادی کامیاب و کامران ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے، منظور ہوتی ہے۔ اور جو شادی میں ڈیمانڈ ہو، جو شادی میں جہیز ہو، جہاز ہو، وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی ہے، وہ شادی بربادی ہو جاتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ساس بہو کا جھگڑا، شادی شدہ انسان کی زندگی میں دیکھیے، شادی جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وائف میں سکون رکھا ہے قرآن مقدس میں، کہ تمہارے لیے اسی میں تمہارے لیے سکون ہے، اور میاں بیوی کے درمیان خدائے پاک نے الفت و محبت قائم کی ہے۔ لیکن پھر یہ باتیں ہر گھر میں، یہ جن کی ماں زندہ ہوتی ہے، ساس بہو کا جھگڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ حالانکہ ماں بڑے پیار سے اپنے بیٹے کو پالتی ہے، پوستی ہے، دودھ پلاتی ہے، اور اپنے بیٹے کا چہرہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتی بھی ہے۔ پھر یہ شادی کے بعد اچانک کچھ ہی دنوں کے بعد یہ نوبت کیوں آ جاتی کہ ساس ٹھیک نہیں ہے، تو بہو ٹھیک نہیں ہے،
तो बेटा ही ठीक नहीं। क्यों? मैं आपको बस ये ज़्यादा देर की बात नहीं, 3-4 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा कि झगड़ा क्यों होता है। ये हर घर का आजकल के हिसाब से, जो आजकल का माहौल है, जो आजकल का सोसाइटी है, हर घर में सास बहू का झगड़ा ज़्यादातर 80-99% नहीं तो 80% पाई जाती है। ये झगड़ा की असल वजह क्या है? आप गौर फरमाएं और ध्यान से सुनकर 11-12 लोगों को बताएं। झगड़ा की असल वजह क्या है कि तीनों फरीक यानी तीनों पटीदार कौन? झगड़ा जड़ से ख़त्म हो सकती है, ये जंग जड़ से मिट सकती है। कितनी बड़ी बड़ी जंगों का खात्मा हो गया, लेकिन आज सदियों से ये सास बहू का झगड़ा जो चल रहा है ये ख़त्म नहीं हो रहा है। अक्सर घर इसके लपेट में है। झगड़ा ख़त्म हो सकता है, ये लड़ाई ख़त्म हो सकती है, ये फितना फसाद ख़त्म हो सकता है। तीनों फरीक हैं, बेटा है, सास है और बहू है। झगड़ा होने की असल वजह क्या है कि तीनों की कुछ न कुछ गलतियां ज़्यादा रहती हैं। तीनों की कुछ न कुछ गलतियां ज़्यादा रहती हैं। ज़्यादा गलती सास की पाई जाती है। हम ये भी नहीं कहते कि हर सास खराब है, ये भी नहीं कहते कि हर बहू अच्छी है। कुछ न कुछ कमियां रहती है, लेकिन जो भी सास रहती है, सास अपने बहू के दौर को भूल जाती है। जितनी सास है, कभी न कभी बहू रही है ना, कभी न कभी बहू रही है, तो वो अपने बहू रहने के ज़माने को भूल जाती है। और जब उसकी बहू आती है तो उस पर हुकूमत और उसकी गलतियों को माफ़ करने के बजाय उसको ताना देती है, गालियाँ देती है। और बहू कितना दिनों तक बर्दाश्त करे? धीरे धीरे बर्दाश्त करने की सोचती है। बर्दाश्त जब नहीं होती है तो बोलने की उल्टी होती है। इससे होते होते झगड़ा और ज़्यादा केस मुकदमा तक चला जाता है। अब ये भी बात है असल कि हर सास बहू से हसद या जलन क्यों करती है। उसकी वजह एक ये भी है कि बेटा की जब शादी नहीं हुई रहती है, बेटा की जब शादी नहीं हुई रहती है तो बेटा दिन भर में माँ 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 75 मरतबा बोलता है। और जब जैसे उनकी शादी हो जाती है तो वो माँ के बजाय ज़्यादातर बीवी को वक्त देने लगता है, टाइम देने लगता है। इससे माँ का दिल दुखता है, इसलिए कि माँ वो शख्सियत का नाम है जिनके कदमों के नीचे जन्नत है। अब बात जाहिर सी है, आप शादी के बाद जिसने 9 महीना अपने पेट में रखा, नौजवान किया, अपनी पूरी जवानी ख़त्म कर दी, और शादी के बाद वाइफ के ही याद में, वाइफ के ही प्यार में, वाइफ के ही इश्क में अगर फंस गए तो माँ का दिल बहुत नरम होता है, माँ को तकलीफ होगी। तो हर नौजवान को, हर बेटा को ये चाहिए कि हम ये नहीं कहते कि आप वाइफ को छोड़ दें, आप अपनी वाइफ को वक्त न दे, उसका भी हक है, लेकिन साथ साथ माँ का भी हक है, माँ का भी ख्याल है। जैसे वाइफ का ख्याल करते हैं, कोई भी चीज़ वाइफ को देते हैं तो पहले बनता क्या है कि माँ से पूछकर या माँ ही के हाथ में दे कि माँ आप उनको दे दीजिए। तो ऐसे माँ का दिल बड़ा अच्छा रहता है, नरम रहता है कि मेरा बेटा आज भी मेरा गुलाम है, आज भी मेरी बातों को मानता है। ये नहीं कि शादी से पहले माँ और शादी के बाद वाइफ जोड़ू का गुलाम, ऐसा नहीं। हम ये नहीं कहते अगर आप अपनी बीवी की बात नहीं माने, हम ये भी नहीं कहते कि अपनी बीवी के मशवरे पे नहीं चले। अच्छा मशवरा देती है, दीनदार है औरत, तो उनकी बातों पे चले, लेकिन साथ साथ माँ बाप का भी ख्याल रखें। तो उसकी वजह ये भी है कि बेटा, आजकल का नौजवान ख्याल नहीं रखते हैं माँ बाप का, उसकी वजह से भी लड़ाई होती है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है
कि हर सास को ये सोचना चाहिए कि ये जो हमारी बहू आई है ये दूसरे घर से आई है, दूसरे घर से आई है। ये इसकी उम्र कम है, इसका तजर्बा कम है, यह हमारी बेटी के मिसल है, यह हमारी बेटी की तरह है। इसे बेटी की गलतियों को मुआफ़ कर देते हैं, बेटी की कमियों को, कोताहियों को मुआफ़ कर देते हैं। उसी तरह हर सास ये सोचे कि ये हमारी बहू बेटी की मिसल है, बेटी की तरह है। हमारी बेटी भी किसी के घर में है। अगर आज हम अपनी बहू के साथ, अपने बेटे की वाइफ के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो हमारी बेटी भी किसी के घर की बहू है, किसी की वाइफ है, उनके साथ अच्छा सलूक होगा, उनके साथ बेहतर सलूक होगा। तो हर सास अपनी बहू को बेटी समझने लगे और हर गलती को माफ़ करने लगे और बेटी की तरह समझा, प्यार, इश्क करने लगे तो बहू को भी एहसास हो जाएगा कि ये मेरी माँ की तरह है। तो हम कहते हैं आधा से ज़्यादा झगड़ा ये सास बहू का ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा फरीक क्या है? वाइफ है। आजकल की वाइफ भी आती हैं तो वाइफ भी, आजकल की बहू भी बहुत ज़्यादा शाने बनती है, बहुत ज़्यादा सास से 2 कदम आगे रहना चाहती है, अपने पति को वश में कर लेती है, पढ़ा लिखा देती है, माँ बाप से अलग कर देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये सोचे, जो भी औरत हो शादीशुदा जिनकी नई हुई, सोचे कि हम उन माँ से अलग कर रहे हैं जिन्होंने 9 महीना आपके पति को अपने पेट में रखा। अगर आपकी शादी हो गई है, आप बहू बन गए, नई नवीली दुल्हन है, अगर आपके बेटे, जब आपको भी तमन्ना होगी औलाद की, आपके बेटे को भी कोई अलग करना चाहेगी या चाहेगा तो आपके दिल पर क्या गुजरेगा? हर बहू को ये समझना चाहिए कि जो हमारी सास है ये माँ की तरह है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी माँ भी सास है। अगर मेरी माँ के साथ कोई गलत सलूक करेगा या हमारी भाभी जो हुई गलत सलूक करेगी तो हमको कितना बेकार लगेगा। उसी तरह ये समझे कि ये मेरे पति की माँ है, ये मेरे शौहर को जन्म देने वाली है, ये मेरी माँ की तरह है। हम उसका ख्याल करें। अगर कुछ कभी डांट डपट कर सास सुना भी दे, 4 वो गाली भी दे दे, फिर भी हर बहू को ये समझना चाहिए कि मेरी माँ की तरह है, माँ की बातों को बुरा नहीं मानते। अगर ऐसा हर बहू समझ लेंगी तो सास बहू का झगड़ा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग समझते नहीं। आजकल के हमारे गांव समाज में सबके, हम ये नहीं कहते कि आपकी, हम किसी पे उंगली भी नहीं उठाते, हम आम बात कहते। आपका गांव हो या हमारा गांव हो, आपका माहौल हो या हमारा माहौल हो, अक्सर जगह ये आलम है कि सास बहू का झगड़ा, ये सास बहू का झगड़ा जो होता है, तीनों की गलतियां कुछ न कुछ रहती है। तीनों आपस में मिलजुल कर इकट्ठा होकर इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ, उल्फत व मोहब्बत के साथ तीनों एक दूसरे को माँ और बेटी और इसकी तरह समझने लगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी और शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानी नहीं होगी। इंशाअल्लाह शादीशुदा ज़िंदगी नेक नामी के साथ गुजरेगी और उनके ज़रिए से जो काम होगा वो भी नेक होगा और हर पल खुशियों की बरसात होगी। तो हमको ये सास बहू का झगड़ा जड़ से ख़त्म करना है। अगर सास बहू का झगड़ा जड़ से ख़त्म करना है तो 3 बातें को याद करनी पड़ेगी। हर बेटा शादी के बाद भी नहीं बदले, वाइफ का भी हक अदा करता रहे, माँ बाप का भी हक अदा करता रहे। और सास जो बहू है, जो अपने बेटे की वाइफ है, उसको अपनी बेटी की तरह समझे। और जो बहू है अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझने लगे तो ये सास बहू का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी हमारे माहौल में शादी करना इतनी मुश्किल काम है और इतना मुश्किल हो गया है कि ज़िना करना आसान है, गलत काम करना आसान है, लेकिन शादी करना मिल्लत के नौजवानों बड़ी मुश्किल है। हम तो इस चैनल के ज़रिए से मसला मसाइल की बात बताते हैं, लेकिन आजकल ये बातें ज़्यादा हो रही है, सास बहू का झगड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो हम सोचे कि इसके ज़रिए से ये भी बता दे ताकि हमारी माएँ बहनें सुनकर अमल करें और अपनी ज़िंदगी में 4 चांद लगाए।
सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।